طور پر اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. جو لوگ بیمار ہیں، بڑی عمر کے ہیں، جو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ان کو ویکسین پرووائڈ کرنے کے لیے، فری آف کاسٹ ویکسین پرووائڈ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ہوم سروس بھی سٹارٹ کی ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ جہاں ہم نے مختلف مقامات پر مختلف ہسپتالوں میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے ہیں، اسی طرح ایک اور بہت بڑا ویکسینیشن سینٹر سندھ حکومت ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم کرنے جا رہی ہے. اس کی تمام ارینجمنٹس مکمل ہو گئی ہیں اور غالباً اتوار سے کل اس کو سٹارٹ ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتوار سے انشاءاللہ ایکسپو سینٹر کا وہ بڑا ویکسینیشن سینٹر کام کرنا شروع کر دے گا. 24 گھنٹے یہ ویکسینیشن سینٹر چلے گا تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے ویکسینیشن کرا کے اپنے گھر جا سکے. یہ جو ایکسپو سینٹر پر فیسلٹی سندھ حکومت نے فری آف کاسٹ مفت ویکسینیشن کی سٹارٹ کی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز 20 سے 25 ہزار افراد کو ڈیلی ویکسینیٹ کر پائے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سنگ میل ہوگا بڑے پیمانے پر اپنی آبادی کو ویکسین پرووائڈ کرنے کا. میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں میں کہتا ہوں کہ اپنی حکومت کا ساتھ دیں SOPs کو فالو کرنے میں، اسی طریقے سے میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہے وہ تمام سندھ حکومت کے ان ویکسینیشن سینٹرز کو وزٹ کریں اور مفت ویکسین سے فیضیاب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ویکسینیشن کے پروسیس میں سندھ گورنمنٹ نے انگیج کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بھی حکومت کی یہ مفت ویکسین پرووائڈ کرنے کی پروسیس کو جلد سٹارٹ کر دیا جائے گا. اور جو لوگ جن کو سمٹمز ہیں ان لوگوں کے لیے آج بھی سندھ حکومت کی فری ٹیسٹنگ سروس اویلیبل ہے، وہ اپنے گھر پر رہیں. جو ہمارا نمبر ہے سندھ حکومت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اس نمبر سے رجوع کریں. سندھ حکومت کا عملہ فوری طور پر آپ کے گھر آئے گا اور آپ کا مفت کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتحاد کے ساتھ، ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ کرونا وائرس کی وبا کو قابو پانے کے لیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنی حکومت کا ساتھ دے گی، اپنا ساتھ دے گی، اپنے شہریوں کا ساتھ دے گی اور ہم لوگ انشاءاللہ مل کر اس وبا کو قابو پانے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، دکانداروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ SOPs کا خیال رکھیں. رات کو ایسا ہوا ہے کہ کچھ دکاندار پولیس سے لڑے ہیں لہاری اور مختلف علاقوں میں اور وہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے. ایک اطلاع یہ ہے کہ جب سے آپ سختی کرنا شروع کر دیے پولیس والوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے. جہاں عوام SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، دکاندار بھی دکھ رہے ہیں، وہاں پولیس والوں نے بھی اپنا بھتہ بڑھا دیا ہے. اس صورتحال کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑائی نہ کریں. یہ آپ کے اپنے ادارے ہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو میری ان سے بنتی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں اور جو ٹائمنگ حکومت نے مقرر کی ہیں
उन टाइमिंग्स की पासदारी करें। हमारे कुछ दुकानदार भाइयों ने गुजारिश की थी कि जुमे के दिन, चूँकि जुमतुल विदा है, आखिरी जुमा है, जुमे को आप सख्ती ना करें, हमें दुकान खोलने की इजाज़त दें। हुकूमत ने उनकी बात सुनी, बात मानी और आज आपने उन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। कल भी वो खुलेंगी, इतवार से इंशाअल्लाह ये बंदिश का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि जिस तरह मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, आपको करना है, हर शहरी को करना है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इस वबा के, जिस तरह माजी में हम फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कामयाब हुए थे, ये मुश्किल फैसले करने के बाद हुए थे, हमें एक बार फिर वो मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। और अगर हमने एक दूसरे का साथ दिया तो हम ज़रूर इस वबा को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। जहाँ तक आपने पुलिस के हवाले से शिकायत की, अगर ये बात जेन्युइन है और हमें शिकायत आती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहूँगा कि किसी शहरी के साथ इस दौरान ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है और इस तरह के लड़ाई झगड़े से, कश्मकश से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगने के बावजूद जो कोच वाले हैं उन्होंने भी अपनी किराए डबल से बढ़ा दिए। इस हवाले से सिंध हुकूमत की पॉलिसी है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर तो पाबंदी है, वो चलनी नहीं चाहिए। किराए कैसे बढ़ा रहे हैं वो? आप निशानदेही करें, कार्रवाई करेंगे। मैं देखिए, मैं शहरियों को कहना चाहूँगा कि यहाँ से अपने गांव जाके या गांव से ईद के बाद वापस आके, क्या पता वो वायरस शहर से अपने गांव ले जा सकते हैं, या अगर वो गांव में ले गए वायरस तो कितना नुकसान हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता वो अपने गांव से वापस आते हैं और गांव से वायरस लेके शहर में आते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट से कहते हैं कि इंसान जहां पर है वहीं पर रुक जाए, वहीं पर बैठ जाए, और ये जो मुश्किल कुछ वक्त है, मुश्किल कुछ टाइम है, दिन है, इसको ज़रा जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। डॉक्टर साहब, कराची समेत सिंध भर में आज से 1 साल पहले कोरोना वायरस की जंग सिंध हुकूमत लड़ रही थी और पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमसे जंग लड़ रहे थे, हमें बुरा भला कहते थे। 1 साल बाद पीटीआई वालों को तो शायद थोड़ा एहसास मुल्क भर के हालात देखकर हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अभी तक शायद वो एहसास उनके अंदर उजागर नहीं हुआ। ये जो फैसला भी सिंध हुकूमत कर रही है वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कर रही है, और उस वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं ये लोग, हुकूमत के साथ बैठे हैं ये लोग। ये बदकिस्मती है शहर की कि जो लोग इस शहर के ठेकेदार बनते थे या आज भी बनने का दावा करते हैं, वो कभी भी इस शहर की आवाम की खिदमत नहीं करना चाहते, वो मुसीबत में उनको धकेलना चाहते हैं। ये अल्लाह ना करे ये वायरस अगर शहर में फैल जाता है तो उसका नुकसान किसको होगा? मुझे, आपको होगा, हम सबको होगा। तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मनफी सियासत इसके ऊपर ना करें। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले बस अपनी हल्की सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से मैं समझता हूँ कोरोना वायरस की वबा से हम काबू पा पाएंगे। ये बता दीजिएगा, भी ले लें, कोई नाराजगी मुनव्वर, जितनी बेहतियाती कराची के बाद में हो रही है कहीं और नहीं हो रही। सिंध भर में सरकारी वैक्सीन निजी तौर पर बेचे जाने की इतलात भी है, और जो घर घर वैक्सीन की सर्विस शुरू हुई थी उसमें निजी अस्पताल ने पैसे भी चार्ज करना शुरू किए थे। तो अब ये वैक्सीन आप किन को देने जा रहे हैं, और क्या आप ये को यकीन है कि अब इस वैक्सीन कोटे पर करप्शन नहीं होगी? अभी निजी अस्पतालों को देने का फैसला किया आप लोगों ने, तो निजी अस्पताल ये बिल्कुल मुफ्त लगाएंगे या पैसे वसूल कर सकते हैं? अगर कोई पैसे वसूल करें तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, इस वक्त जितनी भी सरकारी वैक्सीन इस वक्त सूबाई सिंध में लग रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, और उसके ऊपर 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा। जब प्राइवेट अस्पतालों से इस हवाले से खिदमात ली जाएंगी तो वो लोग भी ये सरकारी वैक्सीन को मुफ्त प्रोवाइड करेंगे, पैसे चार्ज करने की उनको इजाज़त नहीं होगी। आपको याद होगा जब पिछले साल ये कोरोना वायरस की वबा आई थी तो बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों ने भी टेस्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की थी और वो फ्री कर रहे थे
उन मुस्तहिक अफराद के लिए जिसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही थी, उनको पेमेंट करती थी। तो अभी भी वो प्राइवेट हस्पताल जो वैक्सीनेशन की कीमत है वो सरकार बेयर करे, चूँकि वो हुकूमती वैक्सीन है, उसके ऊपर उनको इंशाल्लाह चार्ज नहीं करने दिया जाएगा। बट अगर वो अपनी प्राइवेट वैक्सीन लेके आते हैं और प्राइवेट लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक उनको वो काम करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। अभी एमकेएम के राब्ता कमेटी के अरकान की तरफ से एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान की तरफ से काफ़ी संगीन इल्जाम सिंध हुकूमत से लगाए गए हैं। खासतौर पे रेंजर्स का भी हवाला दिया गया है कि रेंजर्स के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और एक इस्लामाबाद से टेलीफोन आता है तो उनके अख्तियारात में भी इजाफा किया जाता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं कि अरबों रुपए की करप्शन की गई। अमित भाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इररेलेवेंट हो गई, छोड़ दें उसको। मैं समझता हूँ ये जो पिछले उन्होंने 30 साल में शहर का इस्तेहसाल किया है ना, उसका नतीजा अब ये हुआ है कि वो कई मैटर नहीं करते हैं। आपने भी बल्दिया टाउन के इंतखाबात में देख लिया ना, NA 249 में देख लिया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसकी एक ज़माने में तूती बोलती थी शहर के अंदर, वो 6ठे नंबर पर आई है। आपने मलीर के बाई इलेक्शन में देख लिया ना कि वो किस जगह खड़े हुए थे। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मैं समझता हूँ अब मैटर नहीं करती। कराची वालों ने भी देख लिया है कि इन लोगों ने सिर्फ बातें की, चाहे वो सेंसस का इशू हो, सिर्फ ऐलानात, बातें, दावे, लेकिन सेंसस के हवाले से कोई इक़दामात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने नहीं किए। उनके वफाकी वज़रा जो कि काबीना में बैठे हुए थे, उन्होंने उस मुतनाज़ा सेंसस के रिजल्ट को अप्रूव करने में अपना किरदार अदा किया। वो कमेटी के रुकन थे, कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर कानून का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, कानूनी मामला था, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नहीं किया। कराची के हवाले से 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज की बात थी, कोई वादा PTI ने पूरा नहीं किया, वफा नहीं किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नहीं किया। 1100 अरब रुपए का वादा किया, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का वादा किया, कोई वादा इन्होंने वफा नहीं किया। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात मुझसे अब ना करें आप, ये करके ना था। हमारा सवाल हो गया, हो गया, एक ही सवाल होगा। लेकिन गलतियों की सजाएं तो उन्होंने वज़रा को दी, वज़रा को हटाया, खुद तो हट नहीं रहे, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। खावर उनकी गलतियों की सबसे बड़ी सजा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भुगत रही है। कोई वजीर नहीं भुगत रहा, वजीर आजम नहीं भुगत रहे, आम आदमी भुगत रहा है। आप भुगत रहे हैं, आपके कैमरामैन भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, वो लोग भुगत रहे हैं जिनका ताल्लुक आवाम से है। तो खमियाजा तो आवाम भुगत रही है। और मैं समझता हूँ आवाम ने पिछले 6 महीने में जितने बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने PTI को, इमरान खान साहब को बता दिया कि आप लोग अब नहीं चल सकते, हमें आपकी सिलेक्टेड हुकूमत की जरूरत नहीं है जी। ये करके मैं आपको बता दूँ। आप ये बता दें मुझे कि ताजिर कह रहे हैं कि चांद रात तक उन्हें रात 12 बजे तक कारोबार करने की छूट दी जाए। इस हवाले से कोई सिंध हुकूमत फैसला कर रही है या फैसला हो चुका है? फैसला हो चुका है, हमने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ताजरों की रिक्वेस्ट थी जुमे के हवाले से, हमने उस बात पर लब्बैक का उनको इजाज़त दी। अब मैं ताजरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुश्किल वक्त है इसमें आइए मिलकर काम कीजिए ताकि अपनी आवाम को हम इस कोरोना वायरस की वबा से बचा सके। ये ईद शॉपिंग बकरीद में इंशाल्लाह हो पाएगी। जान है तो जहान है, जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह बकरीद में शॉपिंग कर लेंगे, अगले साल ईद में शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जिसका प्यारा बिछड़ गया, जिसका बुजुर्ग बिछड़ गया, जिसका घर वाला बिछड़ गया, उसका हम क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के इशू करदा गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। साहब ये बताएं कि आप पर बड़ी सिंध हुकूमत पर तनकीद हो रही है, सिंध हुकूमत पर एक बड़ी तनकीद हो रही है बहरिया टाउन की जमीन के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन वहाँ के मकामी लोगों की जमीन पर कब्जे कर रही है और वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुतअद्दिद बार ये सवाल उठाया गया है, इस बारे में सिंध हुकूमत की कोई वसात मुतमईन करदा नहीं आई। अच्छा, मैंने ऐड कर लेंगे। सीएम ने कहा था कि भाई इस पे बिलाल साहब ने कहा था कमेटी कोई बनी है, क्या उसकी रिपोर्ट आई है? अभी तक जो रिपोर्ट मैं आपको तफसीलात शेयर करता आज हूँ। दोबारा वहां पर हमला किया है बहरिया टाउन। ये सोशल मीडिया पे मैंने खबर देखी थी और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहा था तो मुझे पता था आप लोग सवाल पूछेंगे। मैंने अभी फिर डिप्टी कमिश्नर मलीर से कंफर्म किया इस बात को, कोई ऑपरेशन इस वक्त नहीं चल रहा वहाँ पर। जब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अहकाम जारी किए हैं, वज़ीर आला सिंध ने ये डायरेक्शन इशू की हैं कि जब तक लैंड के टाइटल का इशू रिजॉल्व नहीं होता, मिल्कियत का इशू रिजॉल्व नहीं होता, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
और इस वक्त भी मैंने कोई तकरीबन आधा घंटा पहले ये चेक किया था, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। जो सोशल मीडिया पे गालिबन वीडियो सर्कुलेट करी है वो आज की नहीं है, वो पुरानी वीडियो है, हमें ये बताया गया है। बहुत शुक्रिया। और खान साहब, एक सवाल से बात है ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोज सुबह उठते हैं, यूटर्न लेते हैं। पहले वो कह रहे थे एक मामूली जुकाम है, अब वो कह रहे हैं खुदा के लिए मास्क पहनो, खुदा के लिए करो। वैक्सीन उन्होंने खरीदने में ताखीर की, वो वैक्सीन नहीं खरीद सके पूरी दुनिया। अब जब केसेस बहुत आगे पहुंच गए हैं तो वो इंडिया की मिसालें दे देंगे, लोगों को वास्ते दे रहे, क्या कहना चाहिए? इमरान खान की ये जो है, इमरान खान मोदी का दोस्त है। जैसे मोदी की सज़ा भारत की आवाम भोग रही है और जैसे इमरान की हमारे भाई ने कहा, मुफ्ती साहब ने, वो सिंध गवर्नमेंट भोग रही है। इमरान खान को सियासत में फेल हो चुका है और जैसे वो कोशिश कर रहा है, मैं यही चाहूँगा इमरान खान को, सियासत उससे हाथ से दूर हो चुकी है और वो कोई क्रिकेट की एकेडमी खोले और क्रिकेट बच्चों को सिखाए। सियासत करना उसका काम नहीं, सियासत करना है तो भुट्टो खानदान का है, बिलाल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब का काम है। जी साहब, एक अवामी सवाल ये है कि 60% लोग प्राइवेट नौकरियां करते और उनकी ड्यूटी की टाइमिंग शाम को 4 बजे, 5 बजे, कभी कभार 6 बजे भी छुट्टी होती है। सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 बजे छुट्टी होती है। आपने 6 बजे तक मार्केटों को खोल के रखा है, तो इस दौरान लोग सफर में ही आएंगे तो मार्केटें बंद हो जाएंगी, लोग शॉपिंग किस तरह कर पाएंगे? कुछ इस पर नजरसानी करें उन लोगों के लिए जिनकी देर से छुट्टियां होती हैं। क्या शॉपिंग करना लाजमी है? चले मैं आपकी ईद पे पुराना जोड़ा पहन लूंगा, आप भी पुराना जोड़ा पहने। इस शॉपिंग को भी छोड़ दें फिलहाल। बकरीद पे इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, कोरोना वायरस कंट्रोल में रहा तो इंशाल्लाह धूमधाम से बकरीद मनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और एहतियात वो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि हमें करने की ज़रूरत है।